Hello friends and hello my students. Welcome you all again to my YouTube channel. I'm Yogaraj Joshi from Baroda High School ONGC secondary section. Today's my subject is Sanskrit of Standard 9th English Medium and today I will discuss the exercise of chapter number 4th will be Vidya Sthanam will be the place of learning. So dear students, I have already discussed chapter number 4 in last two videos part 1 and part 2. Today I will discuss the exercise of chapter number 4 will be Vidyasthana. I will read, explain and answer each and every questions of this exercise one by one. So let's start learning. Will be Vidyasthana will be the place of learning exercise. Let's see the first question of this exercise. अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत. फर्स्ट क्वेश्चन प्राचीन काल समये गुर्जर राज्ये कः विश्वविद्यालयः आसीत्. प्राचीन काले गुर्जर राज्ये वल्भी विश्वविद्यालयः आसीत्. नेक्स्ट इज उपवेदाः कति सन्ति. उपवेदाः चत्वारः सन्ति. वेदाः also fourth and उपवेदाः also fourth. ओके वेदाः अपि चत्वारः सन्ति एवं उपवेदाः अपि चत्वारः सन्ति. नेक्स्ट इज भाष्यकारः स्कंदस्वामी कस्यां शताब्द्यां संजातः. शताब्द्यां मीन्स सेंचुरी. इन विच सेंचुरी. सो कस्यां शताब्द्यां इन आंसर इज चतुर्थ्यां शताब्द्यां स्कंदस्वामी संजातः. फोर्थ क्वेश्चन वल्भी केषां राजधानी आसीत्. वल्भी मैत्रकाणां राजधानी आसीत्. will be the capital of Maitraka kings. Valbi was the capital of Maitraka kings. Okay. Next is महावीरस्य उपदेशः केन नाम्ना प्रसिद्धः वर्तते. महावीरस्य उपदेशः आगमनाम्ना प्रसिद्धः वर्तते. Last question of this first question. वल्भी नगरे मिलितायाः जैनसाधूनां समितेः अध्यक्षः कः आसीत्. सो आंसर इज नागार्जुनः आसीत्. Let's see the next question of this exercise. Question number 2. एकवाक्येन संस्कृत भाषायाम् उत्तराणि प्रदत्त. So write the answer of the questions into Sanskrit. First question of this second question. प्राचीन कालात वल्भी कस्य केंद्रम आसीत्. प्राचीन कालात from the ancient times Valbi used to be center of which place. So answer is अध्ययन अध्यापनस्य केंद्रम आसीत्. वेदांगानि कति सन्ति. हाउ मेनी वेदांगास. सो आंसर इज वेदांगानि षट् सन्ति. ओके व्याकरण निरुक्त छंद कल्प इस तरह से षट वेदांगानि सन्ति. थर्ड क्वेश्चन श्री मल्लवादी सूरी कः आसीत्. हु वाज मल्लवादी सूरी. द आंसर इज मल्लवादी सूरी जैनाचार्यः आसीत्. फोर्थ क्वेश्चन भगवत महावीरस्य जन्म कदा अभवत्. व्हेन वाज लॉर्ड महावीर बोर्न. द आंसर इज ख्रिस्तात् पूर्वं पंचम्यां शताब्द्यां जन्म अभवत्. बिफोर क्रिस्ट in 5th century Lord Mahavir was born. Next is Jaina Sadhunam Samitau Kasya Lekhanasya Prastava Abhavat. The answer is Agama Granthanam Lekhanasya Prastavah Abhavat. Let's see the next question. Question number 3. रेखांकित पदानां स्थाने प्रकोष्ठात् उचितं पदं चित्वा प्रश्नवाक्यं रचयत. Make a question selecting the appropriate word from the bracket. First is Rigvedasya Bhashyakara Skandaswami Asit. So here the question sentence is Rigvedasya Bhashyakara Kaha Asit. So here Kaha is the masculine pronoun. Masculine
pronoun. So here Skanda Swami is the name of masculine. Okay, so here masculine, जहाँ पे भी masculine होता है वहाँ पे उसका masculine का ही pronoun use होता है. महावीरस्य उपदेशः आगम नाम्ना प्रसिद्धः वर्तते. फर्स्ट इज ऋग्वेद से भाष्यकार स्कंद स्वामी आसीत. तो उसका क्वेश्चन सेंटेंस है ऋग्वेद से भाष्यकार कः आसीत, हु वाज कमेंटेटर ऑफ ऋग्वेद. सेकंड इज महावीर से उपदेश आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते. सो क्वेश्चन सेंटेंस इज कस्य उपदेश, कस्य मीन्स हुज मैसेज, उपदेश मीन्स मैसेज, आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते, whose message is famous as Agam name. Next is Jain Sadhunam Samitihi Milita, whose committee met. Kesham Samiti Milita. Next is Navamyam Shatabdyam Valbi Nagarasya Vinashah Abhavat. In 9th century, Valbi city was destroyed. Okay, so is the question sentence is कदा वल्भी नगरस्य विनाशः अभवत्. So when was the Valbi city destroyed? Fifth question, लेखबद्ध उपदेशः वल्भी वाचा नामना प्रसिद्धा जाता. So question sentence is लेखबद्ध उपदेशः केन नामना प्रसिद्धा जाता. Writing message get famous by which name? Okay, so let's see the next question of this exercise. वचनानुसारं शब्दरूपैः रिक्तस्थानानि पूरयत्. सो यहाँ पे विभक्ति शब्द रूप है, जो रामः रामो रामा प्रथमा इस तरह से जो शब्द है इसी तरह यहाँ पे है. एक वचन द्विवचन है बहुवचन. आगमम, सो लाइक द्वितीय विभक्ति मीन्स सेकेंड केस. आगमम लाइक रामम ग्रामम बालकम. ओके, इस तरह से आगमम आगमम आगमो लाइक रामो रामम रामो रामान द्वितीया. इसी तरह से आगमम आगमो आगमान द्वितीया. जनपदे पदे ए इज द सफिक्स ऑफ सप्तमी विभक्ति एक वचन. सो हियर जनपद is the main word and a is the suffix which add the janapad word. Okay, so janapade a is the suffix of saptami vibhakti ekvachan. Janapade janapadayoho janapadeshu saptami बहुवचन. सो केंद्रेशु, सो यहाँ पे भी है जनपद है, इसी तरह यहाँ पे केंद्र शब्द भी होगा. यहाँ केंद्र शब्द को ई सफिक्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा केंद्रे, इन सेंटर. इसका ट्रांसलेशन करोगे तो क्या होगा इन सेंटर. सो जनपदे इस तरह से केंद्रे. जनपदयोः इसी तरह पे यहाँ पे आएगा केंद्रयोः इन टू सेंटर्स. ओके, एंड केंद्रेशु मीन्स इन many centers. So let's see the fifth question of this exercise. Small prayogam kuruta. We were discussed about this small word. Okay, यथा यहाँ पे जो 3 सेंटेंस दिए है वो सभी पास्ट टेंस में है. कहाँ से पता चलेगा, यहाँ पे अ जो वसत पट धातु है पर इसके आगे अ ऐसा सफिक्स वर्ड यूज हुआ है. ये सफिक्स वर्ड है पास्ट टेंस का सिग्नेचर साइन है. तो जब भी कोई धातु के आगे अ ऐसा अ या आ ऐसा सफिक्स वर्ड आपको दिखता है तो आपको समझना है ये पास्ट टेंस का वर्ड है. अपठन, यहाँ पे ये पहले से ही पास्ट टेंस में ही है पर हमें इसको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट टेंस में और यहाँ पे लगाना है स्म का यूज करना है. तो यहाँ पे क्या करना है, छात्रा यथा रुचि अपठन. तो यहाँ पे इसका ही हमें प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है. ये जो धातु रूप है ये धातु वर्ड, इस धातु रूप को ही हमें प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे पठ धातु है, पठ धातु का प्लूरल कौन सा है, यहाँ पे छात्रा है. छात्रा इज द प्लूरल फॉर्म. ओके, छात्रा छात्रः छात्रो
छात्राः छात्राः यथा रुचि पठन्ति। सो छात्राः यथा रुचि पठन्ति, ये इसका प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पे हम स्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, छात्राः यथा रुचि पठन्ति स्म। ओके, नेक्स्ट इज स्कंद स्वामी अत्रैव अवसत। वस धातु है, मेन रूट है वसत, तो वस धातु का प्रेजेंट टेंस में ती प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा, वसति। ओके, तो स्कंद स्वामी अत्रैव वसति स्म। नेक्स्ट इज रामा भूमि अयच्छत। यच्छ धातु है, तो यच्छ को राजा इज द थर्ड पर्सन मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस का सफिक्स कौन सा है, टी है। तो यच्छ धातु है, यह अ है वो तो पास्ट टेंस का है, पर हमें अ निकाल देना, यच्छ ऐसा रहेगा। यच्छ और ती प्रत्यय लगाओ तो क्या बन जाएगा, यच्छति। सो राजा भूमि यच्छति स्म। ओके, नेक्स्ट इज रेखांकितानां पदानां समास प्रकारं लिखत। वादसभायां शास्त्रार्थं भवति स्म। वादसभा, so yeah, this sentence is this word is मध्यम पदलोपी समास। किस तरह से पता चलेगा यहाँ पे मध्यम पदलोपी, वादपूर्णा सभा वाद सभा, वादपूर्णा सभा वाद सभा। यहाँ पे पूर्णा जो शब्द है वो मध्यम पद यानी मिडल वर्ड है, मध्यम पद, पद मीन्स वर्ड। तो वाद ये फर्स्ट वर्ड है, पूर्णा ये सेकंड वर्ड है, और सभा ये थर्ड वर्ड है। तो यहाँ पे वाद पूर्णा सभा ऐसा वर्ड है, यहाँ इसमें से पूर्णा शब्द निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, मध्यम पद का लोप, लोप यानी हटा देने का। तो वाद पूर्णा सभा वाद सभा तस्याम, तो षष्ठी मध्यम पद लोपी कर्मधारय समास। नेक्स्ट इज स्थिरमति गुणमति बहुधाचार्यो आस्ताम। तो यहाँ पे ये क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास है। किस तरह से पता चलेगा, क्योंकि जब भी च ऐसा कोई वर्ड के बाद च, यहाँ पे स्थिरमति च गुणमति च ऐसा भी हो सकता है, या फिर स्थिरमति ही गुणमति ही च इतरेतर द्वंद्व समास। नेक्स्ट इज अत्र प्रवेश परीक्षा भवति स्म। सो यह दिस ये है वो चतुर्थी तत्पुरुष समास है। चतुर्थी तत्पुरुष में प्रवेश परीक्षा, प्रवेशाय परीक्षा, फॉर एंट्रेंस, फॉर एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम, फॉर एडमिशन। सो यहाँ पे आय ये है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, और इसका ट्रांसलेशन करोगे तो प्रवेशाय फॉर एडमिशन ऐसा होगा। तो ये जो फॉर है वो फोर इंग्लिश सफिक्स है, वो चतुर्थी विभक्ति यानी फोर्थ केस का इंग्लिश सफिक्स है, और आय ये है संस्कृत का सफिक्स है चतुर्थी विभक्ति का। प्रवेशाय परीक्षा चतुर्थी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 7, प्रदत्तानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। ओके, यहाँ पे जो पद, यहाँ पे जो पद यहाँ पे वर्ड दिए हैं उस वर्ड को यूज करके हमें क्या बनाना है, संस्कृत वाक्य में बनाना है। वल्लभी मैत्र का राजधानी अस, अस धातु कौन सा है, वॉस। ओके, अस का अस मीन्स वॉस, वॉस। तो वल्लभी मैत्रकास इज द मैत्रकास मीन्स ऑफ मैत्रकास। सो षष्ठी विभक्ति हुई, तो मैत्रक एक नहीं था तो मैत्रक बहुत है, तो मैत्रकाणाम रामाणाम मैत्रकाणाम वल्लभी मैत्रकाणाम राजधानी आसीत। सो वल्लभी was the capital of मैत्रकाणाम, वल्लभी मैत्रकाणाम राजधानी आसीत। People used to come from distant countries. So सुदूरात, so from है, तो from है पंचमी विभक्ति का एक वचन, याद करो पंचमी विभक्ति from। सुदूरात देशात इस द पंचमी विभक्ति एक वचन। सुदूरात देशात जनाः जनौ जनाः। So many people अध्ययनम for learning आगच्छन्ति स्म। So used
to come from distant countries. सुदूरात देशात जनाः अध्ययनार्थम आगच्छन्ति स्म. तो यहाँ पे देखो जब भी किसी भी शब्द के ऊपर लास्ट में यहाँ पे अनुस्वार आता है और अनुस्वार के बाद जब भी आपको अनुस्वार के बाद लास्ट वर्ड में अनुस्वार आता है और उसके बाद जो नया शब्द शुरू होता है वो अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा. अगर कोई भी शब्द के ऊपर अनुस्वार आता है लास्ट में और उसके बाद वॉवेल शुरू होता है तो क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार का हाफ म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा अध्ययनार्थम आगच्छन्ति स्म. ओके, नेक्स्ट इज नागार्जुन प्रसिद्ध पंडितः आसीत्. वास् मीन्स आसीत्. तो नागार्जुनः प्रसिद्धः पंडितः आसीत्. नेक्स्ट इज वेद चतुर अस मीन्स वास्. सॉरी अस्ति अस धातु है पर यहाँ पे संति हो जाएगा. वेदाः चत्वारः संति. संति मीन्स मैनी. 4 वल्भी was destroyed. वल्भ्याः विनाशः अभवत्. वल्भ्याः विनाशः अभवत्. नेक्स्ट इज मातृभाषया उत्तराणि लिखित. नॉट इन मातृभाषा, इन आंग्ल भाषा. इस आंग्ल भाषा इज नॉट our matrubhasha. So write your question in answer. Write the answer of question into English. First question is which 18 laws were taught and learnt in Valbhi Vidya Sthanam? The 18 subjects that were taught at Valbhi Vidyapit, Valbhi Vidya Sthanam is 4 Vedas, 6 Vedangas, पुराण, न्यायशास्त्र, मीमांसा, दर्शन, स्मृति ग्रंथ, आयुर्वेद, धनुर्वेद, म्यूजिक, अथर्ववेद and 4 Upavedas. So let's see next question. How many Vedas and Upavedas are there? So the answer is there are 4 Vedas: Rigved, Yajurved, Samaved and Atharvaved. The sub-Vedas are also 4, that includes Ayurveda, Dhanurveda, Gandharva Veda and Sthapatya means Shilpa Veda. Next question of this exercise. What type of arrangement was there for study during Maitraka rule? So answer is during Maitraka rule, after the course of study got over, there used to be an event called Shastrarth. Various opinions were considered. Students were required to support and prove their opinion. Opinion means Mandan. Mandan means opinion, and refute the opposite opinions. Opposite opinions. Khandan. Opposite opinions means Khandan. Those who scored victory in the debate were given land as a reward by Maitraka rule. Last question of this exercise. Which preceptors means Acharya, were there in Valbhi? So answer is in the 4th century AD, Skandaswami, the famous scholar who wrote commentary of Rigveda, and 2 Buddhist preceptors, Sthiramati and Gunamati, as well as Jain preceptor Sri Mallavadi Suri, lived and studied in Valbhi Vidya Sthanam, in Valbhi University. So thank you students. We will discuss 5th chapter in next video. Thank you students.